विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द राजस्थान स्टेट वुमेन कमीशन। तो सबसे पहले ये एक स्टेटूटरी है, ठीक है, दिस इज ए स्टेटूटरी बॉडी, दिस इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सेकेंड थिंग क्या है कि गवर्नर नहीं अपॉइंट करते हैं, स्टेट की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इसको अपॉइंट करती है, इसके मेंबर्स को। एंड थर्ड, ये 15 मई को आ गया था, फंक्शंस टू हियर इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स ऑफ द वुमेन, ठीक है। नेक्स्ट है ये देख लिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया हैव द पावर टू टर्मिनेट सिटीजनशिप ऑफ एन इंडिविजुअल अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। तो यूनियन गवर्नमेंट जो होता है वो टर्मिनेट करता है पावर को। द अथॉरिटी टू टर्मिनेट द सिटीजनशिप एन इंडिविजुअल इन इंडिया प्राइमरली लाइज विद द यूनियन गवर्नमेंट। Citizenship Act has a power to terminate or cancel the citizenship of an individual. Citizenship can be terminated for reasons such as acquiring citizenship of another country, fraud or misrepresentation, disloyalty, actions against the security of the India. Union government exercise this power through the Ministry of Home Affairs. तो यहाँ पे Ministry of Home Affairs जो है वो इसको terminate करने का काम करती है। Citizenship can be terminated for reasons such as acquiring citizenship of another country, fraud, misinterpretation, disloyalty. The Union government exercised this power through the Ministry of Home Affairs. The Supreme Court of India, which is the localities, took the place of both the federal and the Privy Council Judicial Committee, which were at the time of highest court. And the first hearing and the inauguration was the 28 January 1950. Next one is, which of the following is constitute the ethics committee? Chairman of the Rajya Sabha. So the vice president of the India, next officio chairman of the Rajya Sabha. The Rajya Sabha, also known as the council of the state, one of the two house was there, Parliament of India. The vice president role is the chairman, includes the presiding or the session of the Rajya Sabha, and the chairman ensure the orderly conduct of the business in house and enforce the parliamentary rules. The chairman of Rajya Sabha also has the authority to decide on question of disqualification of the members of the 10th schedule of the Indian Constitution. So Speaker of Lok Sabha, the Speaker and the Deputy Speaker both are elected from amongst members by a simple majority of members present in voting, and there are no specific qualification or prescribed for elected Speaker. Wherever the office of Speaker falls vacant, the Lok Sabha elect another members for fill the vacancy. The date of the election of Speaker is fixed President, and from above we can conclude that member of Lok Sabha elect the Speaker of Lok Sabha. Rajendra Prasad had a maximum tenure as a president, and he was the first president of India. Zakir Hussain was the first Muslim president. Gyani Jain Singh was the first Sikh president of India, and K.R. Narayanan was first Dalit president, and Pratibha Devi Patil, that was first female president. And the Prime Minister Constitution does not contain any specific provision, but Article 75 say that only the Prime Minister shall have the appointed by the President. However, does not imply. The Constitution does not contain any specific procedure selection of Prime Minister. Article 75 say only that Prime Minister shall appoint by the President. However, this does not imply that President is free to appoint anyone Prime Minister. President has the appoint the leader of the majority party का जो leader होता है उसको एज ए प्राइम मिनिस्टर, बट व्हेन नो पार्टी हैज़ ए क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा, देन द प्रेसिडेंट में एक्सरसाइज हिज पर्सनल डिस्क्रिशन इन द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. इन सच सिचुएशन प्रेसिडेंट यूजुअली अपॉइंट्स द लीडर. सो देयर इज ऑल्सो वन ऑफ द मोर situation when the president may have to exercise his individual judgment. So 1980 Delhi High Court held that the Constitution does not require that a person must prove his majority of the Lok Sabha. Under the Citizenship Act, for how many years does the person of Indian origin need to reside in the India become a Indian citizen? That was a 7 years tak. So under this legislation is the matter of the Citizenship Act, which was revised by the Citizenship Act 1986, 92 and 2003. The act was amendment restricted citizenship by birth to require that at least one parent had to be a citizen of India, and the 2003 amendment mandated the Government of India to build a national registrar of citizen, and the conferment of person as an Indian citizen shall have the regulated by the Constitution of India, Part 2, Article 5 to 11. Article 5 to 11. The independence of judiciary imply the legislation and the executive cannot interfere in the work of the judiciary.
So that is imply that. Now who is the following elected member of the local government? So वार्ड मेंबर भी होते हैं एंड पंचायत प्रेसिडेंट्स भी होते हैं, वार्ड काउंसलर होते हैं, बट सेक्रेटरी इज द नॉट इलेक्टेड एज अ लोकल गवर्नमेंट. Local government in India include the entities such as municipality, corporation and panchayat. Ward member and ward councillor are elected representative in urban local bodies such as municipality and municipal corporation. Panchayat president are elected heads of the panchayat, which is rural local government. These positions are filled through the local election where the residents of this area represent. And secretary, that was secretary in the local government, usually hold an administrative position, is appointed to manage the daily operations and execute the policies of the government. Article 38 of Indian Constitution relate to which of the following: healthcare, securing a social order for the welfare of the people. So directs that state to promote the welfare of people by securing a just and fair social order, and the indirectly related to the healthcare by emphasizing government role in improving the social economic health condition of the citizen. The participatory democracy and government structure where local citizens actively contribute to decision making. सो दिस इज़ द पार्टिसिपेटिव. फैमिली वेलफेयर का जो सब्जेक्ट है कौन सी शेड्यूल में है? 11th में है. 11th शेड्यूल एंड 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कंटेन प्रोविजन रिलेटेड टू पावर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, social forestry and rural housing, welfare of agriculture, and emphasizing importance of the rural governance. Schedule 4, which is related to the allocation of the seats of Rajya Sabha. 6 is related to Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. It includes provision for formation of autonomous district council and regional council. Schedule 9 added the first amendment to protect land reform and order law, include in the judicial review also. Now the Hindu Succession Amendment Act allow for the equal sharing of the agricultural land among the son and the daughter and mothers in the Hindu family. Previously, Hindu women were not entitled to a share in the family agriculture. So both are correct and true. Hindu Succession Act was आया था equal sharing for the agriculture and for the daughters. Previously, Hindu women was not entitled to share, but now it is sharing. Next is the what is regarding the review petition. Article 137 of Constitution grant the Supreme Court to power to review the judgment. The Supreme Court can review its ruling to correct the patent error and not minor mistakes of the inconsequential import. Next one is what? Consider the following regarding the Constitution Assembly. The final session of the Constitution Assembly was 24 January 1950. Dr. Rajendra Prasad was declared to be duly elected to the office of President of India in the final session. So the final session of the Constitution Assembly was indeed held in 24 January, and this session marked the end of the Constitution Assembly meeting, culminating the adoption of the Constitution. Dr. Rajendra Prasad was declared duly elected to the office of President, and Dr. Prasad election was officially announced on 24 January during this final session of the Constituent Assembly, and the final session of the Constituent Assembly took place in 1950. Constituent Assembly was instrument in framing the Constitution, which came into the effect of January 26, 1950, making Indian Republic. Rajendra Prasad served as the first President of India, playing a significant role early governments in the country. Luni Basin, in part of the which of the major physiological region, Rajasthan, that was Western Desert. Luni is primarily located in the arid and semi-arid region of Rajasthan. Luni, often referred as the only significant river in the Thar Desert, flow through the basins, drain into the run of Kutch, and that was the Western Desert. The district Rajasthan, which is both interstate and international boundary, that is the Ganganagar district है ये, ठीक है. So the Ganganagar district is the northern Rajasthan, shares the international boundary with the Pakistan, interstate boundary Punjab. Jaisalmer जो है share international Pakistan but does not share the interstate. Bikaner share international boundary but does not share interstate. Jalawad share interstate but does not share international. Which is the following not a alternate name of Bangar plains of the Rajasthan? तो गग्गर नहीं है. Bangar related to Banas, Shekhawati, Godwad, but it is not alternative name of the Gaggar. Gaggar basin is kind of different. So Bangar is a region relatively known the older alluvial soil होती है यहाँ.
Bangar plains including the Banas, Shekhawati, Godwad and Gaggar basin not considered part of the Bangar. Gaggar river is primarily flow through the Haryana, Punjab. The Banas basin name is the Banas river, Shekhawati. Historical regions of the Godwad referred as the region of Rajasthan known as the geographical. The Bangar plains are the older elevation and plains are known for their elevation of compared to the newer elevation area. Khadar is newer and Bangar plain is older elevation area known for their elevated compared to the newly elevated. Banas that was through the Rajasthan state that is important tributary of the Chambal. Shekhawati is historical region located northeastern part of the Rajasthan and Godwad that was region is a geographical region है Godwad and it is also Gaggar region. Godwad basin that was region historical significant है. Gaggar that was river of the Haryana Punjab से flow होती है and significant for this not related to Bangalore. In which of the following district Rajasthan बड़छान फाउंड्स, तो ये मिलते हैं हमें कहाँ, जैसलमेर में. सो बड़छान इज ए क्रीसेंट शेप्ड एंड ड्यून्स होते हैं, प्राइमली डिजर्ट रीजन में मिलते हैं. द फॉर्मेशन ऑफ द बड़छान इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूनिडायरेक्शनल जैसलमेर लोकेटेड इन द थार डिजर्ट एंड दैट वाज एक्सटेंसिवली सैंड ड्यून्स होते हैं. यहाँ पे क्या होते हैं, सैंड ड्यून्स होते हैं. एंड द क्लाइमेट ऑफ जैसलमेर करेक्टराइज्ड बाय द एरिड क्लाइमेट होता है. एंड जैसलमेर इज ऑल्सो नोन द गोल्डन सिटी. उदयपुर इज द नोन फॉर द सिटी ऑफ द लेक ऑफ आर्टिफिशियल लेक and the lake of the Pichola and the Fateh Sagar lake is also there for tourists. Udaipur is the city of the lake of the artificial lake, tourist destination है यहाँ पे. भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी बोलते हैं. अलवर इज़ द बाला किला एंड द सरिस्का टाइगर रिजर्व. अलवर में कौन सा किला है, बाला किला है एंड यहाँ पर क्या है, सरिस्का टाइगर रिजर्व भी हैं यहाँ पर. मिल्क केक भी बोलते हैं अलवर को, फेमस फॉर द मिल्क केक. कलाकंद यहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा, तो मिल्क केक यहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा. एंड कल्चरल हेरिटेज है बाला किला एंड सरिस्का. काला कुट्ठा, लीलावती एंड नारदिया एंड तिमामोरी, ये किसके लिए फेमस है, तो ये है हमारे मैग्नीज़ के लिए फेमस, मैग्नीज़. ओके, तो नेम क्या है, काला कुट्टा एंड लीलवाणी एंड नर्दिया. So all of three are famous for the manganese production. तो मिनरल प्रोडक्शंस में राजस्थान में हम देखते हैं ये कुछ एरिया है, काला खूता, लीलवाणी और नारदिया और तीमामोरी. लोकेटेड एरिया विच इज़ रिच मैंगनीज डिपॉजिट है. यहाँ पे माइनिंग प्रैक्टिस होती है और राजस्थान में माइनिंग सेक्टर में राजस्थान इज़ ऑल्सो नोन फॉर द मिनरल. यहाँ पे सब तरीके के मिनरल मिलते हैं. द सेक्स रेशियो ऑफ राजस्थान दैट इज़ 928 है अकॉर्डिंग टू 2011. हाँ, तो 928 फॉर द फीमेल, फॉर 1000 मेल सेंसस हुआ था तब 921 था, अभी 928 हो गया. हाईएस्ट सेक्स रेशियो डूंगरपुर में है, फिर राजसमंद में है, फिर प्रतापगढ़. द डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान विद द लोवेस्ट सेक्स रेशियो दैट वाज इन धौलपुर. धौलपुर में सबसे कम है, धौलपुर में लोवेस्ट है और डूंगरपुर में हाईएस्ट है. राजस्थान है रूरल सेक्स रेशियो, रूरल का 933 है और अर्बन का है 914. रूरल का है 933 और अर्बन का क्या है 914. ठीक है, सो दिस इज़ और इम्पॉर्टेंट सेक्स रेशो है जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बढ़ावा देंगे. स्टेट लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया दैट वाज इन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, 25% है ऑल ओवर. ठीक है, मध्य प्रदेश. नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस सच एज फ्रूट नट्स आर क्लासिफाइड, ये होते हैं सेकेंडरी प्रोड्यूस. ओके, सो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं जिसमें नट्स फ्रूट्स हर्ब्स आते हैं, सो दैट इज सेकेंडरी प्रोड्यूस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइमरी प्रोड्यूस में तो क्या आता है जिसमें टिम्बर एग्रीकल्चर क्रॉप्स आती हैं, मिनरल्स आते हैं. और टर्शरी के अंदर आता है हमारा जितनी भी फिनिश गुड्स होते हैं, मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड. ठीक है, और नेक्स्ट हम और क्वाटरनरी में आता है नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री सारी. फॉलोइंग ऑफ द माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया, सो गारो, नंदा देवी, कामेट और केटू, ये सब इंडिया में ही है. ठीक है, उसके बाद विच इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द माउंटेन आर करेक्ट, तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो माउंटेन्स के लिए करेक्ट है. माउंटेन विथ शार्प पीक लाइक द हिमालय रिलेटिवली यंग
Shorter and rounded mountain like the Aravali are older than the Himalaya. Aravali older है, yes. Upliftment and erosion continue to shape mountain like Himalaya. तो upliftment और erosion की वजह से हिमालय बना है. Mountain with sharp peak like the Himalaya are relatively young. तो sharp peak की जो mountains होती है वो क्या होती है, young होती हैं. Now which is the following is largest freshwater lake, that is the Wular Lake in India. वुलर लेक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है. ये बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द हाइड्रोग्राफी एंड द कश्मीर वैली फॉर एक्टिंग ह्यूज एब्जॉर्प्शन ऑफ द इन जेलन. वुलर लेक इज फेड बाय द Jhelum river and the various smaller and Sambar lake that was largest inland water in Rajasthan. Pushkar lake that was sacred lake for Hindu located in the Pushkar of the Rajasthan. चिलिका लेक दैट वाज ब्रैकिश वाटर लेक है, ओडिशा में है. लेगून भी है यहाँ पे, ठीक है. और वुलर लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया. पूर्वांचल हिमालय डज नॉट कंप्राइजेज ऑफ पीर पंजाल. तो पूर्वांचल में क्या नहीं है, पीर पंजाल नहीं होता है, ठीक है. पूर्वांचल नॉट रिलेटेड टू पीर, इट इज़ नागा मणिपुर मिजो, बट पूर्वांचल इज़ नॉट रिलेटेड टू पीर पंजाल. जिप्सम कहाँ मिलता है, दैट इज़ द जामसर. कॉपर कहाँ मिलता है, दैट इज़ खोदरीबा. रोक फॉस्फेट जामरकोटड़ा. lead and zinc Rampura Agucha. So gypsum that is in the Jamarkotla, copper Khodariba, rock phosphate Jamarkotla and lead and zinc Rampura Agucha. ठीक है. जिप्सम एक सोप्ड सल्फेट होता है, राजस्थान में मिलता है. बेसिकली कॉपर जो है खोदरीबा खेतड़ी रीजन बहुत फेमस है. रॉक फॉस्फेट के लिए जामरकोटड़ा, लेड जिंक के लिए रामपुरा अगुचा. एंड राजस्थान द फंडिंग रेशियो बिटवीन सेंटर स्टेट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना दैट वाज 60:40. सो इट इज़ राजस्थान द फंडिंग फॉर द रेशियो बिटवीन द सेंटर स्टेट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. फंडिंग पैटर्न इज बेस्ड ऑन कैटेगरी ऑफ द जनरल कैटेगरी राजस्थान. इसमें एक्सेलरेटेड इरीगेशन, वाटरशेड मैनेजमेंट एंड पर ड्रॉप मोर क्रॉप इसको भी इंक्लूड किया गया है. एक तो एक्सेलरेटेड इरीगेशन, वाटरशेड एंड पर ड्रॉप मोर क्रॉप 60:40 है. नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और हिमालय रीजन में 90:10. द फंक्शन ऑफ राजस्थान माइनॉरिटी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन दैट वाज टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड बिजनेस लोन एट कंसेशनल इंटरेस्ट रेट टू माइनॉरिटी अनएम्प्लॉयड यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. तो जितनी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको जो लोन प्रोवाइड किया जाता है दैट इज़ बाय द राजस्थान माइनॉरिटी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. एंड इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था कोऑपरेटिव डेवलपमेंट इन राजस्थान 2001 ए. तो ये कई बार पूछा गया है. रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्सटेंड द होल स्टेट, देयर मे बी द time when cooperative society has to pay collective debt or claims. In such cases, member of cooperative society and his employer may enter into the agreements and that is important thing. And employee shall have competent to deduct from the salary. Next one article 366 of constitution जो है mines and oil fields related. Which is the following true about the Namo Drone Didi scheme? तो Namo Drone Didi scheme, this scheme empower the rural women for training for the drone pilots related in agriculture purpose. It was launched Pradhan Mantri Narendra Modi in 2023 and the scheme provides a drone to 15,000 women. जितनी भी हैं 15,000 women उनको provide किया जाएगा. So this is Namo Drone Didi scheme. 15,000 women self help groups हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था. इनिशिएटिव 6 टू इनहेंस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. इम्प्लीमेंट पीरियड है 2023 से 26. फाइनेंशियल असिस्टेंस 80% सब्सिडी दी जाती है, 3% इंटरेस्ट रेट पर. ट्रेनिंग एंड सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है. इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड हो गया, फाइनेंशियल असिस्टेंस हो गया. कोलेबरेटिव फंड से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, लेड फर्टिलाइजर, इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट किया जाएगा. अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मैक्सिमम प्रीमियम पेबल बाय फार्मर ऑन राबी क्रॉप दैट वाज 1.5% दिया जा रहा है राबी क्रॉप्स को, ठीक है. सो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड क्रॉप स्कीम्स फॉर इंटीग्रेटेड मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, सिंगल प्लेटफॉर्म, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर टू पे द यूनिफॉर्म प्रीमियम 2% फॉर खारिफ, 1.5 फॉर राबी.
5% for commercial crops. So this is insurance cover post harvesting losses जितने भी हो रहे हैं because of the cyclone and unseasonal rains. So maximum period is a 2 week for the harvesting. Next is सोविंग टाइम होगा जून से जुलाई. देन हार्वेस्टिंग सितंबर में. क्लाइमेट से रिलेटेड हॉट ह्यूमिड कंडीशंस होती हैं यहाँ पे. प्रोग्राम वज्र इज एक्सक्लूसिवली फॉर ओवरसीइंग द साइंटिस्ट अचेनसिलियस. नेक्स्ट इज कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय. दिस स्कीम इन 94. मिड डे मील स्कीम दैट वाज इन 95. and the National Accreditation Assessment Council. So National Accreditation Assessment Council जो आई थी that was in 45. All India Council for Technical Education that was that was in 1945. And National Accreditation नाक कब बना था? 94 में बना था नाक. एंड कस्तूरबा वाला जो था 2004 में. ओके, सो सी द कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 4, मिड डे मील 95, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल 94 एंड द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल दैट वाज 1945. नेक्स्ट वन इज, हमें इतना भी पता होना चाहिए नाक क्या है. नाक हेल्प इंस्टीट्यूशन टू अंडरटेक द स्ट्रेंथ या वीकनेस अपॉर्चुनिटीज़ जितनी भी होती है. यूजीसी की एक बॉडी है जो अक्रेडिट करती है हायर एजुकेशंस को. एंड मिड डे मील स्कीम तो कुकड मील आर प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन स्टडिंग इन क्लासेस 1 to 8. ओके, एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन प्रॉपर प्लानिंग कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन दी जाती है. इनकरेक्ट बताना था हमें इसमें, तो करेक्ट देख लेते हैं. इट इज़ ongoing central government sponsored scheme under the Ministry of Women and Child Development. Saksham Anganwadi Poshan scheme was implemented under 2003. That is wrong है actually, and it is extended to children aged 6 years. wrong है. 6 services are provided. That is also wrong. तो Saksham Anganwadi जो आया था ये कब आया था हमें पता होना चाहिए. So this scheme was not under 2003. तो ये सबसे पहले इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम आई थी 1975 में. एंड लार्जेस्ट प्रोग्राम फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट एम टू प्रोवाइड द फूड एंड प्री स्कूल एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट दैट वाज 2013. राइट टू फूड एक्ट दैट वाज इंडियन पार्लियामेंट में एक्ट एम टू द प्रोवाइड सब्सिडाइज फूड ग्रेन दिया जाता है. मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना वाज लॉन्च इन झारखंड. मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना. सो द एम ऑफ मिष्टी स्कीम फॉर द मैंग्रोव ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बीकानेर, नागपुर एंड जोधपुर में है. ग्रीन एनर्जी कहाँ कहाँ है? बीकानेर, नागौर एंड जोधपुर. टू सिग्निफिकेंटली हैव ए abundant solar and wind energy sources making them ideal for renewable energy generation. बीकानेर, नागौर एंड जोधपुर. in which year राजस्थान माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस पॉलिसी दैट वाज इन 2015 में आई थी. किसके लिए? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की पॉलिसी. ओके, सो द राजस्थान माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज पॉलिसी वाज लॉन्च इन 2015 एंड इसके बाद में इसको इस्टेब्लिश किया गया था एक्ट को रिलेटेड टू माइक्रो एंटरप्राइज. एक्ट कब आया था? 2019 में. पॉलिसी कब लॉन्च हुई थी? 2015 में. ठीक है, सो दिस वाज डिफरेंट टू थिंग्स. वर्टिकल्चर किससे रिलेटेड है? दैट इज ऑफ ग्रेप्स. वेगिकल्चर, ट्री फार्मिंग, पिस्सिकल्चर, फिश, ओलेरिकल्चर फॉर द वेजिटेबल. वो इनॉग्रेटेड 14 नेशनल वाटर डे इवेंट ऑफ राजस्थान. तो ये गवर्नर कलराज मिश्र ने इसको लॉन्च किया था. सो 14 जो नेशनल वाटर डे आया था दैट वाज कलराज मिश्र. and the occasion organized by the election commission aim encourage citizens to participate and highlight the importance of voting. Governor Mishra is emphasizing need of the greater awareness about the democracy and this day is celebrated annually to mark the founding day. In which lake of the Rajasthan avian botulism disease become active? That was a Sambar lake. So recently Center for the Avian Research Institute reported the death around 600 migratory birds and high temperature and low salinity
neuromuscular disease caused by the botulinum clostridium botulinum is a, यहाँ पे बहुत से disease हुई हैं. So this is what is the objective of the operational Ladli campaign launched by the police department that was to prevent the child marriage. So Operational Ladli was the special campaign launched by the Rajasthan police to prevent child marriage in the state. The campaign was launched for the November, focusing on the preventing child marriage during the period of November. So IG Civil Rights Jay Narayan issued directive to all district police chief to ensure the effective implementation of the campaign. IG Civil Rights of the Jay Narayan district police chief to ensure effective implementation awareness regarding to this. डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अभी 4th जनरेशन टेक्निकली एडवांस मिनिएचराइज पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है, जिसको हमने विशोर आदर्श बोला है. अंडर नेशनल न्यूट्रिशनल मंथ विच रैंक हैज़ बीन रिसीव्ड बाय द चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस में इंटीग्रेटेड चाइल्ड अंडर द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान. दैट वाज 4th रैंक मिली है इसको. ठीक है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेक्रेटरी हैं महेंद्र सोनी. इन्फॉर्म दैट द फाइनल रिजल्ट ऑफ द जन आंदोलन फॉर द नेशनल न्यूट्रिशनल मंथ डायरेक्टरेट ऑफ द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस अंडर द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट 4th रैंक एट द नेशनल लेवल फॉर द एक्सीलेंट परफॉर्मेंस. 4th रैंक एट नेशनल लेवल फॉर द एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इनको दिया गया है. ठीक है, चूरू टोंक हनुमानगढ़ वर अहेड इन मेकिंग एंटायर रिपोर्टिंग. और which hospital in Rajasthan will be developed the RIMS and on the line of AIMS, that was the RUH जयपुर का जो हॉस्पिटल है. सो मेडिकल एंड हेल्थ मिनिस्ट्री श्री गजेंद्र सिंह खीवसर इन्होंने हॉस्पिटल एफिलिएटेड टू राजस्थान फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ द हेल्थ डेवलप्ड एंड राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स की तर्ज पे ही हम रू जो है दैट इज़ नेसेसरी स्टाफ दिया जाएगा इसको. नेक्स्ट इज चूज द ट्रू अमंग द मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना. इट इज़ चेंज द नेम मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना टू प्रधानमंत्री बाल गोपाल योजना. येस, under the scheme 200 mm milk for the 1 to 5 and 150 for the 6 to 8. that is wrong. 150 for the 1 to 5 and 200 for the 6 to 8. ठीक है, तो वो उल्टा लिख दिया है उन्होंने. और नेक्स्ट, इन विच ऑफ द बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान इज लॉयन ब्रीडिंग सेंटर बिंग डेवलप्ड. तो ये है सज्जनगढ़. सज्जनगढ़ में क्या बनाया जा रहा है? लॉयन ब्रीडिंग सेंटर. ओके, so in the lion safari at the Sajjangarh Biological Park Udaipur will be also serves as the lion breeding center in future, and it was start pair of the lions from Junagadh से यहाँ पर आएंगे. ठीक है, नेक्स्ट है रूलर ऑफ विच डायनेस्टी ऑफ द राजपूताना टुक पार्ट इन द ट्रिपार्टाइट वार ऑफ द कंट्रोल ऑफ कन्नौज. तो ये गुजर प्रतिहारा थे. अरेंज करना है, सबसे पहले राव सिंहा आए थे, फिर अस्थाना आए थे, फिर आए थे दूलर, लास्ट में राव और रायपाल आए थे. ये राठौर डायनेस्टीज़ हैं. सो राव सिंहा जो थे सबसे पहले मारवाड़ में, फिर अस्थाना, फिर दुहार, और उसके बाद में आए थे क्रोनोलॉजिकली. सबसे पहले यहाँ पे डेथ ऑफ द महमूद गजनी, उसके बाद में विग्रह राज कैप्चर्ड द डेली टोमर्स, दैन इसके बाद में पृथ्वीराज चौहान असेंडेड द थ्रोन, एंड लास्ट में है डेथ ऑफ आलाउदल. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज विथ रेफरेंस टू भक्ति सेंट. भक्ति में सबसे पहले आई थी यहाँ पे शंकरा देवा, देन उसके बाद में है सूरदास, देन उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु, लास्ट में है मीराबाई. ठीक है, ये क्रोनोलॉजिकली बताया हमने. इसमें है कालीबंगन, दैट वाज इन राजस्थान, मोहनजोदड़ो दैट वाज इन सिंध, धोलावीरा इन गुजरात, एंड राखी गढ़ी दैट वाज हरियाणा. इसके बाद में है कि कौन सा कलिंग वार से रिलेटेड, तो रोक एडिक्ट 13 है. फिर ट्रिग्नोमेट्री किससे रिलेटेड है, तो ट्रिग्नोमेट्री है आर्यभट्ट. रूल ऑफ गवर्नेंस संस्कृत दैट वाज द पाणिनि, एस्ट्रोनॉमिकल ब्रह्मगुप्तन, अलजेब्रा वराह मिहिर, अलजेब्रा ब्रह्मगुप्त एंड एस्ट्रोनॉमिकल थॉट दैट वाज वराह मिहिर. नेक्स्ट, द हड़प्पन आर्ट क्रेडिटेड विद बीइंग द फर्स्ट टू कल्टिवेट विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, दैट वाज द कॉटन क्रॉप.
Harappa are the credited with being the first cultivate which is the following crop, that was the cotton crop. The Sadhu Sitaram Das was associated with which farmer movement, that was the Bijolia Krasak Andolan. So 1897 में Bijolia Rajasthan is gathered in the Girdari Pura village. Sadhu Sitaram was associated with the Bijolia movement, and Sadhu Sitaram Das worked for the library, and it was Sadhu Sitaram Das was the fired from his job library on the state. शेखावटी वाला जो है, शेखावटी फार्मर मूवमेंट वॉज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द सिक्कर, एंड 5 बिग एस्टेट इन दिस एरिया, नवलगढ़, मंडावा, दूनलोद, बिसाऊ, एंड इन विलेज कातराथल इन द शेखावटी 10th जाट वुमेन जो थी यहाँ पे, किशोरी देवी वॉज इन द शेखावटी रीजन. मेवात किसान आंदोलन, दैट वॉज मेव ऑफ द अलवर 1932. And Barad is under the Barad was under the leadership of the Nainu Ram Sharma, a farmer Barad region in the Bundi, and that was superintendent of the police Ikram Hussain filed bullet on this. तो ये कई बार पूछा जाता है कि किसने वहाँ पे बुलेट चलाई थी. इकराम हुसैन थे. एंड इन द दाबी वाला एरिया जो है, दैट इज़ ऑल्सो इन द बूंदी. नानक बिल एंड द देवलाल गुजर वर मार्टर्ड फॉर द किसान आंदोलन इन द बूंदी. एंड मोहम्मद अली जो थे, ये लीडरशिप दी थी इन्होंने मेवात अलवर में किसने दी थी? मोहम्मद अली ने. नाउ नेक्स्ट, वेयर डिड द रिवॉल्यूशनरी राजस्थान गिव्स द स्लोगन चलो दिल्ली मारो फिरंगी, दैट वाज इन एरिनपुरा. सो सोल्जर ऑफ एरिनपुरा वाज गिव द स्लोगन चलो दिल्ली मारो फिरंगी. जोधपुर region was formed by the British in 1835, and the headquarter of Jodhpur was in Erinpura. Devli cantonment in the Kota, Kherwada in the Mewad, Bilkor and Nasirabad, that was soldier of the native infantry. Reason for the Bhil revolt. The Bhil revolt से related is removal of the Bhil from army, British police suppressing Bhil, state rights and the Bhil right to guard, collect the Bolai tax. So all four are related to the Bhil revolts. The work Desh Darpan focus in the history of that in the Bikaner. So Bikaner is a city in the north west of the India. It was founded Rao Bika 1488. Bikaner has a rich history and the cultural heritage, and known for the forest palaces and the temples. देश दर्पण इज़ हाईलाइटिंग द हिस्टोरिकल कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ द बीकानेर. जैसलमेर को हम गोल्डन सिटी भी बोलते हैं, एंड दैट वाज येलो सैंडस्टोन से बनी है, एंड इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट फुली प्रिजर्व्ड फोर्टिफाइड, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दिया गया है. जयपुर, वी कैन से इट इज़ ए पिंक सिटी, एंड दैट वाज फाउंडेड 1727 बाय द राजपूत रूलर जय सिंह सेकेंड. जोधपुर, दैट वाज नोन एज अ ब्लू सिटी, एंड ब्लू पेंटेड हाउसेस बनाए गए हैं यहाँ पे. नेक्स्ट है अभिनव भारत मंदिर. अभिनव भारत मंदिर इज रिलेटेड टू द विनायक दामोदर सावरकर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अरेंज द फॉलोइंग करना है. तो सबसे पहले लॉर्ड वेवेल आए थे, उसके बाद में लिनलिथगो आए थे, फिर आए थे माउंटबेटन, एंड लास्ट में आए थे इरविन. हाथल विलेज कहाँ पर है? दैट इज़ इन द सिरोही. इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान से रिलेटेड है. सो हाथल विलेज इज एसोसिएटेड विद द प्रिंसली स्टेट ऑफ सिरोही विच प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल ड्यूरिंग द इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस. सिरोही वॉज वन ऑफ द प्राइमरी princely state in the Rajputana. During this reorganization of the state, Sirohi was merged into the state of Rajasthan with Hathal village of marking, and this integration was part of the broader efforts. Kishangarh was another princely state Rajasthan known for the contribution of Rajasthan culture. And Jhalawar, that was established in 19th century, known for the rich cultural heritage. Pratapgarh, that was primarily state in Rajasthan, is historically significant for the Rajput. Who was the appointed first Raj Pramukh of Rajasthan? That was the Maharaja Savai Mansingh II of the Jaipur. So Mansingh II, the title of the Raj Pramukh, was established after the integration of Jaipur 1949. As Raj Pramukh, he served as the constitutional head of the state. Maharaja Savai Mansingh II was the ruling Maharaja Jaipur and played a significant role in the political landscape of Rajasthan. The integration of the Rajasthan involved the merging the several princely states.
Integration of state. The integration of Rajasthan involved the merging of the several princely state of the Raj Pramukh. So Maharaj Savai Man Singh II is remembered for his contribution to the development of the modernization of the Jaipur. Which neighboring country did India sign the Farakka Treaty? That was the Bangladesh. Krishna Thapa related to the boxing. Which is the following the folk music? That was the नावोरिया गीत. कांदरिया महादेव है हमारे खजुराहो में. लिंगराज मंदिर इन द भुवनेश्वर. बुद्धिस्ट टेम्पल दैट वाज इन बोध गया. एंड सुचिंद्रा टेम्पल दैट वाज इन द त्रावणकोर. Which committee is recommended constitutional recognition for local government? That was थुंगन कमेटी. 74 अमेंडमेंट के अंतर्गत थुंगन कमेटी आई थी रिव्यू करना है पंचायती राज को. So this is the local self government, and that was 24 April 1993 AM. This provided constitutional status to the Panchayati Raj institution under Article 243 and 243O Part 9 of the Constitution. Act mandate करता है इसमें establishing municipalities in urban area and also provide reservation of the seat for SC and ST and tribal area. So 243P and ZG, that was related to the 74 constitutional amendment. Which is the following associated recommending the measure for electoral reform? तो ये वोहरा कमेटी थी. So NN Vohra set up to examine the criminalization of the politics and measure of electoral reform. Committee came to the conclusion that CBI, IB and the RO among the others had unanimously stated that they believe the criminal networks जितना भी है इसको कम करना. Next is the Hargobind Khurana. Hargobind Khurana is the genetic composition cell. C.V. Raman is related to the scattering of the light. Jagdish Chandra related to the measurement of the plant growth. Aryabhatta for the discovery of the zero. Bhakti Pradeep Kulkarni is related to the chess. Bhakti Pradeep Kulkarni related to the chess. Which is the following style has the medieval literary work of Ras Raj has been used? That was Marwar. So Jodhpur जो है that was related to golden period of this style is called the reign of Maldev, and featured depiction of the sand dunes, camel crown and जो भी horses हैं इससे. 19th century Hindi literary work Ras Raj written by the Mati Ram in Marwar painting style has been used for the illustration. नेक्स्ट पेंटिंग ऑफ राजस्थान में जो जितने भी डायमेंशन है उसको जयपुर ने कवर किया है. राणा कुंभा की पेंटिंग बनाई गई. एंड द फर्स्ट इलस्ट्रेशन बुक ऑफ राजस्थान इज श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी. तेज सिंह मेवाड़ एंड बिलोंग्स टू द मेवाड़ पेंटिंग. एंड आनंद कुमार स्वामी दैट वो राजस्थान की जो पेंटिंग है राजस्थान में फर्स्ट टाइम बनाई गई है राजपूत पेंटिंग. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट? अलगोजा नहीं है. अलगोजा क्या है वैसे? विंड इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, दैट इज़ नॉट स्ट्रिंग. मेजर आर्टिस्ट थे इसके रामनाथ चौधरी. प्लेड इट थ्रू द नोज से इसको प्ले करते थे. और वीर तेजाजी लाइफ स्टोरी ऑफ तेजाजी डिग्गी एंड डोला मारू डांस वगैरह भी है. ना फोक इंस्ट्रूमेंट है. स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट तो तत् होता है. विंड इंस्ट्रूमेंट अलगोजा होता है. एंड अवनत इंस्ट्रूमेंट में ढोलक, डोल और नगाड़ा बजता है. अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में ड्रम, खड़ताल, मंजीरा, मोरचंग वगैरह. इन विच ऑफ द डांस पुरिया. पुरिया किससे रिलेटेड है? इसमें राई होता है, कैरेक्टर होता है राई, इससे रिलेटेड है, ठीक है. सो द बील होते हैं जो कि गवरी लोक कला नाट्य, राई को भी बोलते हैं राई लोक नाट्य. लॉर्ड शिवा और भस्मासुर की स्टोरी है इसमें. इसमें मांदल और थाली को यूज़ में लेके बजाया जाता है और राई डांस भी कहते हैं. एंड द डांस विच इज़ परफॉर्म एज एट द वेरियस कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गवरी लोक नाट्य. एंड जामट्या और खड़कट्या दो कैरेक्टर है इसमें. और कनगुजरी एंड मोयाबाड एंड मेदालिया बूथ. डांस में डिफरेंट ट्राइब्स होंगे जो कि भील, गरासिया और कथोड़ी. भील जो होते हैं गेर गवरी से रिलेटेड होते हैं. गरासिया में वालड़, लूड़, कूद और कथोड़ी में मावलिया डांस. द वुमेन लीडर who was put into jail by the Bharatpur state for demanding the registration of Bharatpur Praja Mandal, that was the Sushila Tripathi. So she was wife of the Lakshman Swarup Tripathi
एंड पायोनियर थी अलवर में कैसे पब्लिक अवाकनिंग लाना है। शी डिड द वर्क फॉर प्रमोटिंग हिंदी इन मद्रास एंड सपोर्टिंग द ब्रांच ऑफ हिंदुस्तानी सेवा दल। शी डिड सत्याग्रह इन द चांदनी चौक। और भरतपुर राज्य प्रभा संघ वॉज इस्टेब्लिश इन 1928। सो श्री कृष्णलाल जोशी, गोपीलाल यादव, यहाँ पे बहुत ही लोग यहाँ वर्क कर रहे थे। कमला देवी वॉज नॉन फर्स्ट वुमेन फॉर द राजस्थान की जर्नलिस्ट नहीं है। शी ब्रॉड फॉर द प्रकाश न्यूज़पेपर। सो कमला देवी रिलेटेड टू द प्रकाश न्यूज़पेपर। एंड कोकिला देवी अलॉन्ग विद द अदर वुमेन डिड सत्याग्रह इन अजमेर और अरेस्ट हो गई थी। ठीक है। राजस्थानी लैंग्वेज एंड कल्चर, डिंगल रिलेटेड टू डायलेक्ट। तो यहाँ पे डायलेक्ट्स होते हैं बहुत सारे। सो दिस इज़ द मेजर स्टाइल ऑफ राजस्थानी लिटरेचर, जैन, चारण, कॉस्मिक एंड सेंट। डिंगल इज ए लिटरेचर, प्रोज एज वेल एज पोइट्रीज भी होती हैं इसमें। ये पूछ क्या रहा है, कल्चर डिंगल किससे रिलेटेड है, ये डायलेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है। तो डिंगल एज ए एंशियंट इंडियन लैंग्वेज, ये नागरी स्क्रिप्ट में है। पिंगल तो मिक्सचर होता है जिसमें कि ब्रज और राजस्थानी दोनों होते हैं। पिंगल इज़ अ लिटरेरी फॉर्म दैट यूज द ईस्टर्न राजस्थान मोस्ट ऑफ द लिटरेरी होता है। पिंगल इज मिक्सचर ऑफ ब्रज एंड राजस्थानी। सो दिस इज लैंग्वेज बाय द बाट कम्युनिटी। सम फैक्ट अबाउट द राजस्थानी लिटरेचर, महाकवि माघ इज कॉल्ड द कालिदास ऑफ राजस्थान। ठीक है। और मोनोट नेंसी अबुल फजल ऑफ राजस्थान। और फर्स्ट मॉडर्न हिस्टोरिकल राजस्थान, फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री के हैं कॉलोनल जेम्स टोड। राजस्थान की फर्स्ट हिंदी नावल अल्लाह अबला लाउका, ऐसा कुछ है ना। बागड़ी जो है वो हनुमानगढ़ में, जागृति जो है ये है करौली में, देवारी जो है दैट वाज उदयपुर में, और गोरवाड़ी जो है दैट वाज इन सिरोही। तो ये कुछ डायलेक्ट्स हैं। वेस्टर्न राजस्थान में मारवाड़ी, मेवाड़ी बोली जाती है, बागड़ी, शेखावटी। मिडिल में ढूंढाड़ी हाड़ौती बोली जाएगी। ठीक है। रनमल छंद आर अर्ली वर्क इन राजस्थान दैट वाज श्रीधर व्यास का वर्क है ये। तो रनमल छंद किसका वर्क है, श्रीधर व्यास का। तो द चारण लिटरेचर हैड रिवील्ड दैट दिस जेनर ऑफ लिटरेचर हैड बीन कंप्राइजिंग बाय पीपल ऑफ चारण कम्युनिटी, some of the including the Doha, Sortha and the Chapia. Charan is the first notable Charan poet of this era was the Sridhar Vyas. श्रीधर व्यास ही थे यहाँ पे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज राजस्थानी लिटरेचर में एक तो है दूरथा खाड़ा, हरिबाऊ सूरी का है, सामुद्रा वाक्य काव्य हरिभद्र सूरी। कुवल्यमाला तो उद्योतन सूरी का है, सुखीदन जगन्नाथ का है, और पंच ग्रंथी दैट वाज ग्रामर है ये है बदी सागर सूरी की है। ठीक है। अचलदास खिचड़ी वचनी का किसकी है, विजय देथा, विजय शिवानंद गार्डन सॉरी। और दूरथा खाड़ना दैट वाज हरिभद्र सूरी। नेक्स्ट है विच इज़ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट टेम्पल। तो ये हर्षद माता का टेम्पल है आबानेरी में। ठीक है। ये सबसे ओल्डेस्ट है। इसने श्रीनाथ जी बोला है, और पार्श्वनाथ टेम्पल भी बोला है, और जगदीश टेम्पल पूछा है, और हर्षद माता। इन सब में से सबसे ओल्डेस्ट है हर्षद माता का टेम्पल। सो हर्षद माता लॉर्ड विष्णु से रिलेटेड है। हर्षद माता इज लोकेटेड राइट इन फ्रंट ऑफ द चांद्र बावरी एंड अबानेरी। दिस टेम्पल डेडिकेटेड टू द हिंदू टेम्पल बिलीव इन। और रणकपुर का जो टेम्पल है ये 15th सेंचुरी में आया था, जबकि हर्षद माता का टेम्पल 8th सेंचुरी में आया था। एंड जगदीश टेम्पल इन 1651। और श्रीनाथ जी टेम्पल है, श्रीनाथ जी टेम्पल दैट वाज 1728। सबसे न्यू है श्रीनाथ जी। ठीक है। मेवाड़ का जो मेवाड़ हिली रीजन दैट वाज गिरवा, हाड़ौती रीजन दैट वाज मुकुंदरा, शेखावटी फॉर इनलैंड ड्रेनेज, एंड गग्गर दैट वाज नाली। ठीक है। तो शेखावटी जो है दैट इज इनलैंड, एंड गग्गर नाली, एंड मेवाड़ वाला हेरा गिरवा, एंड हाड़ौती मुकुंदरा हिल। सो राजस्थान में देखिए वेस्टर्न रीजन में ड्राई सैंड डिजर्ट्स हैं, लूनी जवाई बेसिन है, शेखावटी, गग्गर के मैदान है। अरावली वाला जो एरिया है दैट इज साउदर्न अरावली, सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्टर्न भी है। ईस्टर्न प्लेन्स में बनास, चंबल एंड सेंट्रल माही का जो बेसिन है वो ईस्टर्न प्लेन्स का ही है। तो माही और बनास वाला जो एरिया है दैट इज़ फॉर द ईस्टर्न प्लेन। साउथ ईस्टर्न में हड़ौती आएगा, कोटा बूंदी, एंड विंध्या का जो लैंड है पूरा धौलापुर एंड करौली वाला। गिरवा ड्यू टू दिस हिल्स आर अराउंड, मतलब
गोल गोल होने की वजह से गिरवा कहते हैं उदयपुर में। शेप ऑफ द उदयपुर लाइक द सोसर लाइक बेसिन। एंड मुकुंदरा, दिस इज मुकुंदरा इज नियरली कोटा एंड झालावाड़। गग्गर प्लेन फ्लड ऑफ द फ्लो एरिया होता है ये हनुमानगढ़ गंगानगर में। एंड शेखावटी इज ए नोन फॉर द भांगर प्रदेश। एंड सिक्कर चूरू डीलवाड़ा एंड देयर इज मेनी सॉल्टी वाटर्स होता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है बुलंद दरवाजा, दैट वाज रिलेटेड टू द गागरोन फोर्ट। So Buland Darwaja, it was Gagron Fort included in the category of the water fort, and Gagron Fort is situated at the Mukundra Hill confluence of Ahu River, Kali Sindh and Jhalawad River. Gagron Fort was built by the king Bisal Dev and Dulhargarh. Buland Darwaja built by the Aurangzeb. नेक्स्ट है जूनागढ़ फोर्ट। जूनागढ़ फोर्ट इस सिटी बीकानेर में है। अचलगढ़ इज़ द फोर्ट सिचुएटेड अबाउट 11 किलोमीटर ऑफ द माउंट आबू एंड द फोर्ट वॉज ओरिजिनली बिल्ड बाय द परमार डायनेस्टी। तो अचलगढ़ वाला तो माउंट आबू में है, परमार डायनेस्टी ने बनाया था। कुंभलगढ़ फोर्ट कहाँ है? उदयपुर से 84 किलोमीटर पे है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कहा जाता है। इट वॉज बिल्ड बाय द राणा कुंभा 15th सेंचुरी। साबी इज सॉरी विच इज़ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली इमेज। तो बाणगंगा जो है दैट इज़ खमनोर हिल में नहीं है, बाणगंगा खमनोर में नहीं है, ठीक है। तो साबी रिवर, कांतली रिवर तो पता ही है सिक्कर में, खंडेला हिल्स। एंड बाणगंगा दैट वाज बेराट हिल कोटपुतली। सोम रिवर दैट वाज द बीछा मेड़ा इन द ऋषभ देव इन उदयपुर, ठीक है। ड्रेनेज बताने हैं हमको, तो ड्रेनेज सिस्टम इज मीन्स रिवर सिस्टम। तो चंबल जो है द ओनली रिवर फ्लो थ्रू द ईयर ऑफ राजस्थान एंड अरावली माउंटेन रेंज डिटरमाइनिंग द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान। अरावली माउंटेन रेंज आर द वेस्टली वाटरशेड राजस्थान एंड डिवाइड्स द रिवर फ्लो इनटू द स्टेट 2 पार्ट्स। तो सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम है बे ऑफ बंगाल, अरावली और इनलैंड ड्रेनेज, ये तीन जो है तीनों राजस्थान में है। विच इज़ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली इमेज बताना है। गडीसर जो है जोधपुर में नहीं है। बंद बरेठा तो है अपने भरतपुर में, गलता जयपुर में है और तालाबशाही धौलपुर में है। लेकिन गडीसर जो है वो जोधपुर में नहीं है। गडीसर कहाँ पर है? तो देखेंगे कि गडीसर जैसलमेर में है, ठीक है। रावल जैसल ने इसको 1156 AD में जैसलमेर बनाया था। गढ़ सिंह बाटी अराउंड एरिया बिल्ड किया गढ़सिक्सर, और ये 1.5 किलोमीटर जैसलमेर की लेक के पास में है। बंद बरेठा सिचुएटेड इन द बयाना तहसील ऑफ द भरतपुर। बंद बरेठा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एन ओल्डेस्ट वाइल्ड सेंचुरी टाइम्स ऑफ भरतपुर। और महाराजा जसवंत सिंह जो थे स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम ऑफ द कोकुंद रिवर इन द भरतपुर। कोकुंद रिवर कहाँ है? दैट इज ऑल्सो इन द भरतपुर। और राम सिंह भी यहाँ पे थे, जसवंत सिंह थे। गलता जी तो जयपुर में है, पता है हमें, ठीक है। और बचा क्या? तालाबशाही डैम दैट वाज इन धौलपुर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान लोकेटेड वेस्टर्न ऑफ 15 किलोमीटर ऑफ आइसो हाइट। तो ये है अपनी चूरू और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, जो कि 50 सेंटीमीटर आइसो हाइट पर है। चूरू और हनुमानगढ़, दौसा भीलवाड़ा नहीं आएगा। ओके, सो 25 सेंटीमीटर आइसो हाइट पे हैं। वाटर वेस्टर्न मोस्ट बेल्ट है द ग्रेट डिजर्ट, 15 सेंटीमीटर आइसो हाइट पर चूरू और हनुमानगढ़ है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट द करेक्टली इमेज बताना है। कामनाथ सिरोही में नहीं है, जरगा उदयपुर में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है और रघुनाथगढ़ सिक्कर में है, बट कामनाथ सिरोही में नहीं है, ठीक है। तो कहाँ है कामनाथ? तो देखो गुरु शिखर है माउंट आबू में, शेर पीक सिरोही में, देलवाड़ा सिरोही में, जरगा उदयपुर में, अचलगढ़ सिरोही में, माउंट आबू सिरोही में, कुंभलगढ़ राजसमंद में, रघुनाथगढ़ सिक्कर में, ऋषिकेश सिरोही में है, कामनाथ है उदयपुर में, कामनाथ है ना, और गोरमजी अजमेर में, खो जयपुर में, और तारागढ़ अजमेर में, नाग पहाड़ अजमेर में। इनकी लंबाई देखेंगे तो गुरु शिखर सबसे बड़ी है, फिर शेर, फिर देलवाड़ा, फिर जरगा है, फिर है अचलगढ़, फिर है माउंट आबू, अचलगढ़ से भी छोटी, कुंभलगढ़ उससे भी छोटा, माउंट आबू से भी छोटा, रघुनाथगढ़ कुंभलगढ़ से भी छोटा, ऋषिकेश, फिर कमनाथ, गोरमजी, खो सबसे छोटा, तारागढ़ उससे छोटा, और उससे भी छोटा है नाग पहाड़।
नाग पहाड़ के बाद में है बेरच, फिर है बाबाई, फिर है बेराट। बेराट कहाँ है? जयपुर में है। बाबाई कहाँ है? झुंझुनू में। पूछ लेते हैं बाबाई। और बेरच कहाँ है? अलवर में है। Which of the following are the largely affected by soil erosion due to surface water action in राजस्थान? तो चंबल वाला जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। गुली इरोजन भी होता है, जो कि चंबल रीजन इन राजस्थान इज मोस्ट अफेक्टेड बाय द सोल इरोजन। ठीक है। गोडवाड़ रीजन का है, साउथ वेस्टर्न राजस्थान जो है वो गोडवाड़ है, जिसमें गुजरात का जो एरिया है बाड़मेर, सांचौर, सिरोही वाला। शेखावटी में चूरू, झुंझुनू और सिक्कर। मारवाड़ लाइज partially in the Thar desert of the Rajasthan. Marwar is derived from the Sanskrit word and that was under the Barmer, Jodhpur, Pali. The only district have the pyrites deposit in Rajasthan that was Sikkar. ठीक है, तो pyrites larger deposit of pyrites have been in the Sikkar. In the absence of sulfur reserves, the only alternative indigenous source of the sulfur is pyrite. Intensive exploration has been revealed this is डिपोजिट ऑफ द टंगस्टन। टंगस्टन तो नागौर में है, डेगाना में। लाइमस्टोन के जो हैं जोधपुर और नागौर में है। और डिपॉजिट ऑफ द टंगस्टन डेगाना, नागौर। लाइमस्टोन जोधपुर, नागौर, पाली। कॉपर के जो हैं खेतड़ी में हैं। ठीक है। और जेट्रोफा तो जामट कोटरा, उदयपुर में बायोडीजल पायलट प्लांट्स लगाए गए हैं। So as a viable source of the generating renewable energy, Jatropha, and that was the management is likely to set up the Jatropha-based biodiesel plant in the Jamat Kotra rock phosphate Udaipur. Jatropha is the source for high-quality biodiesel and non-toxic low smoke. Aravali mountain range of the Mewar region is the suitable base for the biodiesel plant in the Jatropha. Now, in which of the following group of the district the Salar or the Sal forest are found? अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सिरोही में साल फॉरेस्ट फाउंड होते हैं। राजस्थान दिस फॉरेस्ट आर एक्सटेंडेड टू द उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही, पाली, अजमेर, जयपुर, अलवर एंड सिक्कर। सो सालर एंड जो भी है रीजन यहाँ पर पाया जाता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2021, राजस्थान हैज़ ए 37% टोटल फॉरेस्ट एज ए रिजर्व फॉरेस्ट है। और उसके बाद में 56% जो फॉरेस्ट है दैट वाज इन द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। रिजर्व फॉरेस्ट है 37, प्रोटेक्टेड 56 है, अनक्लासिफाइड 6.5 है। तो रिजर्व फॉरेस्ट कितने हैं राजस्थान में? 37। फॉरेस्ट एरिया कितना है जोग्राफिकल एरिया का? 9.6%। और स्टेट में जो टोटल 4.23% ऑफ द फॉरेस्ट पाया जाता है। ठीक है। इंडिया का टोटल 4.23% है, वैसे 9.60% है। अगर टोटल रिकॉर्डेड देखें तो 32863 स्क्वायर किलोमीटर है, ये भी पूछ लेते हैं। 32863 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है। और रिजर्व फॉरेस्ट कितने हैं? तो 37% हैं। प्रोटेक्टेड कितने हैं? तो 56% है। अनक्लासिफाइड कितने हैं? ये भी पूछ लेते हैं। अनक्लासिफाइड तो 6.5% है। रिपोर्ट कब आई थी? 2021 में आ गई थी। ठीक है। और राजस्थान हैज़ 56% फॉरेस्ट एरिया अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेंसस द डिस्ट्रिक्ट हैविंग मोर देन 1000 रूरल सेक्स रेशो, तो पाली में है। तो पाली का सेक्स रेशो कितना है हमें पता होना चाहिए। 928 तो राजस्थान का सेक्स रेशो है, पहले 921 था। और ऑल जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें पाली के अंदर 1003, तो सेक्स रेशो सबसे ज़्यादा है पाली में। द सेक्स रेशो ऑफ अर्बन एरिया का 933 बताया था, और 914 और 933 रूरल, 914 फॉर अर्बन। सेक्स रेशियो जो है धौलपुर का जो है वो सबसे कम है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है कि परसेंटेज डिकेडल चेंज इन द रूरल एंड अर्बन इन द राजस्थान। तो रूरल में तो 19 है और अर्बन में 29 है। देखो ये ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो ये परसेंटेज चेंज रूरल और अर्बन में। ठीक है। तो एब्सोल्यूट इंक्रीज़ हुआ है हमारे यहाँ पे जो डिकेडल ग्रोथ है वो तो है 21.3%। मेल्स के अंदर जो है 20% और वुमेंस के अंदर है 21.8%। मेल के अंदर है 20.8%। डिकेडल ग्रोथ इन द रूरल पॉपुलेशन 19 है और अर्बन जो है वो है 29। ठीक है। तो मेल्स के अंदर है 20.8% और फीमेल्स के अंदर है 21.8%।
राजस्थान का सेंसस हुआ था जिसमें कि हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ हुई है, तो बाड़मेर में हुई है हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है। और मिनिमम पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है गंगानगर में। हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन ग्रोथ जैसलमेर में। और मिनिमम रूरल ग्रोथ हुई है जो कि हुई है कोटा में। हाईएस्ट रूरल पूछेंगे तो जैसलमेर में, मिनिमम रूरल पूछेंगे तो कोटा में। डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन पूछेंगे तो अलवर में। मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन कहाँ है, तो डूंगरपुर में है। और डूंगरपुर में सबसे कम अर्बन रहते हैं, अलवर में सबसे ज़्यादा हैं। मिनिमम रूरल पूछेंगे तो कोटा, मैक्सिमम रूरल पूछेंगे तो जैसलमेर। मिनिमम पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ हुई है, तो गंगानगर में। मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ हुई है, तो बाड़मेर में। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट रोटू कंजर्वेशन रिजर्व इज लोकेटेड, दैट वाज इन द नागौर। नागौर में क्या है, रोटू कंजर्वेशन। ठीक है, सो रोटू कंजर्वेशन फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द राजस्थान एंड it is spread around 0.72 square kilometer according to the forest survey of India। टोटल 37% रिजर्व फॉरेस्ट है हमारे पास, 56% टोटल हमारे पास प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है जो कि 18,553 है, और रिजर्व है 12,176। राजस्थान हैज़ ए रिकॉर्डेड फॉरेस्ट दैट वाज 32863 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, जिसमें से टोटल 9.60% जोग्राफिकल एरिया का फॉरेस्ट है। 4.23% ऑफ द इंडिया का है हमारे पास टोटल फॉरेस्ट, और अनक्लासिफाइड है हमारे पास में 6.5। देखो, नॉट करेक्टली मुझे बताना है। कैमल को नाचना बोलते हैं, शीप को खेड़ी बोलते हैं, बफेलो को मैसाना बोलते हैं, लेकिन गोट की जो है वो नाली नहीं है। ठीक है, नाली तो अलग ही है। तो नाचना के हमारे पास कैमल्स हैं बहुत सारे जो कि जैसलमेर में फाउंड होते हैं। खेड़ी के शीप से हमारे पास, नाली के भी शीप्स हैं जो कि गोट्स नहीं है। मैसाना के बफेलो हैं हमारे पास में। ठीक है, गोट में है हमारे पास जामरापारी, लोही, जरखाना और बारबरी। जामरापारी, लोही, जरखाना और बारबरी ये क्या है, गोट्स हैं। जामनापारी, लोही, जरखाना एंड बारबरी। मेज के अंदर पार्ट ऑफ द राजस्थान दैट वाज साउथ एंड साउथ ईस्टर्न राजस्थान जो है मेज में है हमारे पास, साउथ एंड साउथ ईस्टर्न का जो राजस्थान का एरिया है। ठीक है, सो मेज इज ए मेन ग्रेन इन द बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो मेज कहाँ मिलती है, बांसवाड़ा में। इट इज़ द स्टेपल फूड ऑफ द राजस्थान, स्पेशली मेवाड़ रीजन। तो बांसवाड़ा का जो रीजन है वो मेवाड़ रीजन है। यहाँ पे हमें मेज मिलेगी। यहाँ पे रेड ब्लैक सॉइल पाया जाता है बांसवाड़ा में। ठीक है, मेज इज़ मेनली प्रोड्यूस इन द साउदर्न एंड द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान एंड माही, कंचन एंड माही वेराइटीज़ भी यहाँ पाई जाती है। मेज कहाँ पे मिलता है हमें, दैट वाज इन द बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट एंड इट इज़ इन द मेवाड़ रीजन। नाउ द टोटल एरिया ऑफ द राजस्थान 3,42,200। राजस्थान में 11% ऑफ द कंट्री का एरिया कल्टिवेबल लैंड है एंड 50% ग्रोस इरीगेटेड एरिया है हमारे पास। 60% एरिया ऑफ राजस्थान इज डिज़र्ट एंड 10% माउंटेनियस है। तो 60% एरिया हमारा क्या है, डिज़र्ट्स का एरिया है। ठीक है, 60% एरिया ऑफ राजस्थान इज़ अ डिज़र्ट एंड 10% इज़ अ माउंटेन। 60% is a desert area and 10% is a mountainous area. 11% of the country area is a cultivable land and the state has a 50% of gross irrigated area while 30% is net irrigated area. 50% तो gross irrigated है, 30% net irrigated area है। और टोटल एरिया कितना है, 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि टोटल 10.41% ऑफ द कंट्री का। ठीक है, तो यहाँ पे 60% तो डिज़र्ट हैं, 10% माउंटेन्स हैं, 50% तो ग्रोस एरिया है इरीगेटेड, 30% नेट इरीगेटेड एरिया है। भीखाबाई सागवाड़ा कैनाल, भीखाबाई सागवाड़ा कैनाल बीन बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, दैट वाज द माही रिवर। सो भीखाबाई सागवाल कैनल इन डूंगरपुर, दिस कैनल प्रोजेक्ट was approved by the Central Water Commission. This canal has been constructed by the माही रिवर के ऊपर। ठीक है, भीखाबाई सागवाला कैनल बनाई जा रही है, दैट इज़ ऑन द डूंगरपुर माही रिवर। ठीक है, दिस विल प्रोवाइड इरीगेशन फैसिलिटी अबाउट द 21,000 हेक्टेयर ऑफ द डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट। नर्मदा कैनल इज़ अ प्रोजेक्ट आल्सो सर्व द कंडीशंस ऑफ द
लाइक गुजरात और राजस्थान को कोऑर्डिनेट करने के लिए है, ठीक है। एंड दिस कैनल इज एंटर राजस्थान फ्रॉम द सीलू विलेज, सांचौर एंड जालोर, एंड द स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम दैट वाज इन द नर्मदा कैनल, यमुना वाटर इरिगेशन प्रोजेक्ट दैट वाज यूटिलाइजिंग द वाटर रिवर ऑफ द यमुना, एंड भरतपुर, चूरू एंड झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, सिद्धमुख नोहर दैट वाज राजीव गांधी नोहर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। सिद्धमुख नोहर को ही राजीव गांधी भी कहा जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज विच इज़ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मुझे बताना है। स्टेट का वुलन मिल चूरू में नहीं है, वाटर मीटर जयपुर में है, सीमेंट मोदक में है, कॉटन टेक्सटाइल दैट वाज इन द ब्यावर। तो स्टेट का वुलन मिल दैट इज़ नॉट इन चूरू, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है सबसे पहले स्टेट का जो वुलन मिल कहाँ पर है, ये बीकानेर में है। जोधपुर वुल फैक्ट्री जोधपुर में है, वॉरस्टेट स्पिनिंग मिल चूरू में है, लाडलू नागौर में, ठीक है, चूरू में स्पिनिंग मिल है, और राजस्थान वुलन मिल जो है वो बीकानेर में है, ठीक है। तो स्टेट वुलन टेक्सटाइल द कृष्णा मिल लिमिटेड विच इज एस्टेब्लिशिंग 89 सेठ दामोदर राठी, एरिक डिक्सन इज ए ब्यावर अजमेर। राजस्थान सेकेंड टेक्सटाइल मिल एडवर्ड मिल है जो कि अजमेर ब्यावर में 1906 में। उसके बाद में है द लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल इन राजस्थान दैट वाज द उमेद मिल इन पाली। तो लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल इन द राजस्थान दैट वाज द उमेद मिल दैट वाज इन पाली। चित्तौड़गढ़ सीमेंट वर्क लिमिटेड इज लोकेटेड इन द चित्तौड़ एंड सीमेंट रिलेटेड टू निम्बाड़ा। श्रीराम सीमेंट जो है श्रीराम इन द कोटा। बिरला वाला गोटन में है वाइट सीमेंट के लिए, दैट वाज इन नागौर। जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मेनली सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़गढ़, ठीक है। सो द जवाहर सागर इट इज़ चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। वेराइटी ऑफ द वाइल्ड लाइफ नीलगाय एंड बोर हायन वेरी स्पीसी मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड important fact related to the wild animal, Rajasthan Wild Bird Protection Act that was 1951, the Wildlife Protection Act 1972 में आया था। एंड कैलाश सांखला जो है who is related with the Wild Bird Protection Act 1951, the Wildlife Protection Act 1972, and Kailash Sankla is also called the Tiger Man of India. He also wrote the book Tiger and the Return of Tiger. So Ranthambore National Park in Savai Madhopur, Sariska Tiger Reserve in Alwar, Mukundra Hill in Mukundra Kota, Ramgarh that was in Bundi, Ranthambore in the Savai Madhopur, and Sariska Tiger Reserve that was in the Alwar, and धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। अभी कितने हैं टोटल? 5 टाइगर रिजर्व है राजस्थान में। पहला है रणथंबोर, फिर है सरिस्का, फिर मुकुंदरा, फिर है रामगढ़ विषधारी, बूंदी, एंड फिर है धौलपुर टाइगर रिजर्व दैट वाज धौलपुर करौली। एंड द क्रिएटर ऑफ टाइगर कंजर्वेशन कौन है? कैलाश सांखला, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। ही इज ऑल्सो रोट द बुक टाइगर एंड द रिटर्न्स ऑफ द टाइगर। इन विच ऑफ द नंबर ऑफ द फेमाइन ड्रोट अफेक्टेड विलेज वॉज मैक्सिमम इन राजस्थान। तो ये जो सबसे ज़्यादा फेमाइन आया था ये आया था 2002 से 3 के बीच में, ठीक है। सो क्या है? इन राजस्थान फेस द वर्स्ट ड्रोट इन सेंचुरी ऑफ 2002 एंड 3। डेफिशिएंसी हो गई थी बहुत ज़्यादा, रेनफॉल, डेविएशन। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट्स में तो बहुत ज़्यादा ही हुआ था ये, झालावाड़ एंड बीकानेर। सो ड्रोट प्रोन एरिया प्रोग्राम चलाया गया था 74 में, डिज़र्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया था 77 में, एंड सेंटर स्टेट ने शेयर किया था 75:25। तो डिज़र्ट डेवलपमेंट का प्रोग्राम कब था? 1977 में, एंड ड्रोट प्रोन एरिया के लिए चलाया गया था 74 में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज हाईली अफेक्टेड ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन? तो वो है पाली, ठीक है। पाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैज़ बीन मोस्ट अफेक्टेड बाय द वाटर पॉल्यूशन ड्यू टू डाइंग एंड प्रिंटिंग। वाटर पॉल्यूशन अफेक्टेड एग्रीकल्चर लैंड एंड कंटामिनेटेड वाटर डिस्चार्ज हो रहा है यहाँ पे। हमारे यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग्स हैं, जैसे अजरक बाड़मेर में है, मल्लीर बाड़मेर में है, जाजम प्रिंट शिपोका अकोला में है, दाबू प्रिंट दैट वाज इन समाई माधोपुर, एंड वीट दाबू इन द सांगानेर, एंड मड का डाबू बाड़मेर में है, सांगानेरी प्रिंट दैट वाज इन द जयपुर। नाउ नेक्स्ट वन है हमारे पास में कि कौन सा आर्टिकल करेक्ट है, नॉट करेक्ट बताना है ना। तो रिमूवल ऑफ गवर्नर नॉट इन 155,
ऑफिस ऑफ गवर्नर 153 में है, टर्म्स जो है 156 में है, एग्जीक्यूटिव पावर जो है 156 में है। बट रिमूवल ऑफ द गवर्नर कहाँ पर दिया गया है? द गवर्नर शेल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, 156 में प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट बताया गया है। प्रोविजन, गवर्नर शेल होल्ड ऑफिस ऑफ द टर्म ऑफ 5 ईयर एंड विच इज एंटर्स अपॉन द ऑफिस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूस ऑफ द ग्राउंड नट इन राजस्थान? दैट वाज बीकानेर। बीकानेर में सबसे ज़्यादा ग्राउंड नट्स होते हैं, ठीक है। सो राबी सीज़न और ख़रीफ सीज़न दोनों में आता है ग्राउंड नट। लुनक्सर एरिया ऑफ बीकानेर फेमस फॉर द ग्राउंड नट, हैंस इज इसको राजकोट और राजस्थान भी कहा जाता है। ग्राउंड नट इज़ ए खरीफ क्रॉप एंड द मैक्सिमम प्रोड्यूस इन द राजस्थान इन द बीकानेर डिस्ट्रिक्ट। और टोटल एरिया का 34239 है राजस्थान, और 10.41% भी है हमारे पास टोटल राजस्थान, ठीक है। 11% ऑफ द कंट्री एरिया इज कल्टिवेबल एंड स्टेट हैज़ ए टोटल एरिया हो गया, कल्टिवेबल एरिया 11% हो गया। 50% तो ग्रोस इरीगेटेड एरिया, 30% नेट इरीगेटेड एरिया, 60% ऑफ राजस्थान में डिजर्ट है, 10% माउंटेनियस एरिया है। वो अमंग द फॉलोइंग गवर्नर ऑफ द राजस्थान हैज़ बीन चेयरमैन ऑफ द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स? ओपी मेहरा थे। ओपी मेहरा अज्यूम ऑफिस एज ए 7th गवर्नर थे ये, 82-85 के ड्यूरिंग आए थे ये लोग। रघुकुल तिलक जो थे फॉर्मर गवर्नर ऑफ राजस्थान, 77 से 81। श्री सुखदेव प्रसाद 9th गवर्नर थे, ठीक है। सुखदेव प्रसाद कौन से थे? 90। जबकि ओपी मेहरा कौन से गवर्नर है? 7वें हैं, और सुखदेव जी हैं 90, ये आए थे 1990 के अंदर। और चेन्ना रेड्डी भी गवर्नर रह चुके हैं राजस्थान के, ये 92-93 में चेन्ना रेड्डी थे हमारे यहाँ गवर्नर, ठीक है। चेन्ना रेड्डी जी थे जब 92 में मैंने फर्स्ट स्कूलिंग स्टार्ट की थी उस समय, और उससे जस्ट पहले जब मैं पैदा हुई थी उस समय यहाँ के गवर्नर कौन थे? क्योंकि 1988 में मैं पैदा हुई थी, तो 1988 से 90 के बीच के यहाँ के गवर्नर थे वो थे सुखदेव प्रसाद। और रघुकुल तिलक थे जब मेरी मम्मी की शादी हुई थी, 82 में हुई थी मम्मी की शादी, तो 77 से 81 तक रघुकुल तिलक रहे हैं, ठीक है। रघुकुल तिलक उस समय थे। सुखदेव जी तो जब मैं पैदा हुई तब गवर्नर बने, और चेन्ना रेड्डी जी थे 92 में। बाय विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ राज प्रमुख वॉज अबोलिश्ड इन राजस्थान? तो राज प्रमुख को 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से अबोलिश किया जा सकता है। महाराजा सवाई मान सिंह जयपुर बिकम द हेड ऑफ द 30 मार्च 1949 में आए थे। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वर हेल्ड इन 1952 एंड देन हैज़ बीन इलेक्टेड एज ए CM, ठीक है। फिर बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन द इंस्टीट्यूशन ऑफ राज प्रमुख वॉज अबोलिश्ड बाय 7th अमेंडमेंट। श्री गुरुमुख निहाल सिंह वॉज अपॉइंटेड द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द राजस्थान। गुरुमुख निहाल सिंह क्या थे? पहले गवर्नर ऑफ द राजस्थान के, ठीक है। तो क्या करना था? यूनिफिकेशन करना है। सबसे पहले मत्स्य संघ बना था, इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। फिर सेकेंड फेज आया था राजस्थान का इनॉग्रेशन, कोटा, टोंक, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, किशनगढ़, शाहपुरा। थर्ड फेज आया था, इसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर को ज्वाइन कर दिया गया। जयपुर वॉज इसकी कैपिटल बनाई गई, क्या? जयपुर, थर्ड फेज में, ठीक है। कुशलगढ़ और लावा सेकेंड फेज में। फोर्थ फेज में यहाँ पे आया था मत्स्य संघ, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली आ गए। फिर फिफ्थ फेज फॉर्मेशन ऑफ राजस्थान एज ए लार्जर पार्ट ऑफ द सिरोही मर्ज इनटू द राजस्थान। एंड फिर सिक्स फेज आया था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। आबू तालुका वॉज ऑल्सो मर्ज बाय द राजस्थान। एंड अजमेर मेरवाड़ा विच वॉज द ब्रिटिश प्रोविंस। एंड ये पूरा हो गया। इन विच ऑफ द 2020 हाउ मेनी ऑर्डिनेंस हैव बीन प्रोमुलगेटेड बाय द गवर्नर ऑफ राजस्थान? टोटल 8 ऑर्डिनेंस आए थे 2020 तक, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो द राजस्थान एपिडेमिक डिजीज, राजस्थान एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट ऑर्डिनेंस, गुड सर्विस, राजस्थान स्टैम्प के रिलेटेड आया था। फिर आया था एपिडेमिक्स, फिर आया था एक्साइज, फिर आया था गुड सर्विस, फिर आया था पुलिस। टोटल 8 आए थे। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आर्टिकल 213 में है। गवर्नर ऑफ द स्टेट इन इंडिया एज ए इशू द ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन द स्टेट असेंबली नॉट इन सेशन। गवर्नर कैन नॉट इशू ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द सेशन ऑफ स्टेट बट
Power promulgate ordinance is the temporary power of given the governor when the legislative assembly is not in session. So the governor is required to obtain the consent of the state assembly when it is reconstituted and assembly does not approve ordinance 6 weeks or its revealing. Which of the following has been chief minister of Rajasthan for 3 or more times? तो बेरो सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया और हरदेव जोशी, ये लगभग 3 से 4 बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी, बेरो सिंह जी, अशोक गहलोत हैव बीन स्वॉर्न द चीफ मिनिस्टर राजस्थान 3 और मोर टाइम्स। हीरालाल देवपुरा जो थे बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड, केवल 16 दिन के लिए बने थे। उनका नाम था हीरालाल जी देवपुरा, हीरालाल देवपुरा। हरिदेव जी जोशी वॉज द फ्रीडम फाइटर एंड ही वॉज सर्व गवर्नर ऑफ द मेघालय के, बंगाल के और असम के, जोशी जी। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया 54, 57, 62, 64 4 बार रहे हैं। बेरो सिंह जी भी 4 बार रहे हैं, 77, 80, 90 एंड 92। तो देखिए जिस समय मैं पैदा हुई थी उस समय बेरो सिंह जी थे। ठीक है, 80, फिर 90, 92, 93, 77, पूरा सीरीज वाइज। ठीक है, मोहनलाल जी हैं, मोहनलाल जी तो बहुत ही पुराने, 54 जब मेरी मम्मी पैदा हुई थी उस समय आए थे मोहनलाल सुखाड़िया, 54, 57, 62 एंड 67। ठीक है, और उस समय मोहनलाल जी सुखाड़िया 4 बार लगातार। और अशोक गहलोत 98 to 2000 से, जब मैं 8th क्लास में आई थी, और उसके बाद में 8th के बाद में जब मैं कॉलेज में भी थी, कॉलेज 8th से लेकर के क्लास 5th से लेकर के लगातार मेरे कॉलेज कंप्लीट होने तक कौन रहे हैं? अशोक गहलोत एज ए सीएम रहे हैं। ठीक है, क्लास 5th से लेकर के लगभग मेरी कॉलेजिंग कंप्लीट हो गई। जब मैं आरएस का इंटरव्यू दे के आई थी उस समय भी कौन थे? अशोक गहलोत जी। आफ्टर 2018 ही बिकम द सीएम ऑफ द स्टेट फॉर द 3rd टाइम। फिर अगेन जब मेरा 2018 में मैंने क्या किया था, उस समय एमए किया था हिस्ट्री से, उस समय भी कौन थे? अशोक गहलोत जी थे। पंडित हीरालाल शास्त्री वॉज द फर्स्ट सीएम ऑफ द राजस्थान। हीरालाल शास्त्री कौन थे? फर्स्ट सीएम थे। 7 अप्रैल 1949 to 51। तो 49 में हम लोग पाकिस्तान से इंडिया आए थे, मतलब पाकिस्तान टूटा था उस समय, तो हमारा भी हम लोग भी जस्ट उसी एरिया में रहते थे। हम जब वापस भीलवाड़ा एरिया में आए तो उस समय यहाँ के सीएम कौन थे? हीरालाल जी शास्त्री थे। हीरालाल शास्त्री वॉज बोर्न इन जॉबनेर इन जयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ 1899। ठीक है, पंडित हीरालाल शास्त्री वॉज द फर्स्ट सीएम ऑफ द राजस्थान स्टेट। ही रिमेन्ड इन द ऑफिस 49 to 51 एंड शिवचरण माथुर वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द राजस्थान फ्रॉम 81 to 85 एंड अगेन 88 to 89। तो शिवचरण माथुर जी कब बने थे सीएम? 81 से 85, जब मेरे भैया पैदा हुए थे, मेरा भाई पैदा हुआ था 85 में, उस समय कौन थे? शिवचरण माथुर जी यहाँ के सीएम थे। अगेन जब मैं पैदा हुई थी 88 to 89, तब भी कौन थे सीएम? शिवचरण जी माथुर थे। हम दोनों का सेम, मतलब सीएम भी सेम है हम दोनों के टाइम में, मेरे बड़े भाई और मेरे बीच के ठीक टाइम में। और लेटर ऑन द गवर्नर ऑफ असम बने ये। वसुंधरा राजे हैज़ बीन द सीएम ऑफ राजस्थान ट्वाइस। तो वसुंधरा जी कब बनी? 2003 से 2008। 2003 में मैं 8th क्लास में थी, 2008 में मेरी 12th कंप्लीट हुई थी। उस दौरान 2006 में 12th कंप्लीट हुई थी, 2008 में मेरी कॉलेजिंग चल रही थी। तो जब मैं कॉलेज में थी 2nd ईयर में, उस समय भी वसुंधरा राजे थी। एंड अगेन 2013 से 18 मेरा टाइम चल रहा था आरएस के टाइम, जब मैं आरएस की प्रिपरेशन कर रही थी, तो उस समय भी कौन थी? वसुंधरा जी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ राजस्थान इज करेक्ट? द स्ट्रेंथ ऑफ राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज 160 इन द 1952। दैट इज ट्रू। The rule of procedure and the conduct of business of Rajasthan Legislative Assembly was first framed in 1956. There are 18 standing committee of the Rajasthan Legislative Assembly. तो 18 नहीं है एंड 4 फाइनेंशियल, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो टोटल है फर्स्ट राजस्थान की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी दैट वाज इन द 1952। टोटल स्ट्रेंथ 160 थी। द स्ट्रेंथ वाज इंक्रीज 190 आफ्टर द मर्जर ऑफ द अजमेर स्टेट इन द 1956। तो यहाँ पे 190 हो गई। सेकेंड फेज आया, देन थर्ड फेज आया था 62 से 67। लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ ए स्ट्रेंथ ऑफ 176। फिर फोर्थ फेज आया था 72 से 77 का।
यहाँ पे हो गई थी 184। तो जब मेरी मॉम पैदा हुई थी उस समय कितनी थी स्ट्रेंथ, दैट वाज 176। उसके बाद में बीच में स्ट्रेंथ और बढ़ गई 84, 184 हो गई 77 में। अब भी जो 6th असेंबली चल रही है, ठीक है, 80, तो ये हो गई 200। कब हुई थी? 6th असेंबली में। 6th असेंबली कब आई थी? 1980 में, जब शादी हुई थी मेरे पापा की, उसके आसपास। उस समय स्ट्रेंथ कितनी हो गई थी? 200। तो द राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ मेड रूल्स ऑफ द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस इन राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली टू रेगुलेट द वर्क ऑफ the house of its committee. These were first prepared in 1956 and after several revision the latest 14 edition was printed 2014. तो 22 स्टैंडिंग कमेटी है, 18 नहीं है, और जिसमें से 4 रिलेटेड टू द फाइनेंशियल हैं, पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अंडरटेकिंग एंड 2 एस्टिमेट कमिटीज़ हैं, ठीक है। अगला है बिफोर द इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए सीएम ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नर। तो भोगीलाल जी पांड्या नहीं रहे हैं, शोभा राम जी, गोकुल जी एंड माणिक्य लाल वर्मा रहे हैं। तो स्टेजेस ऑफ यूनिफिकेशन में मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 फर्स्ट स्टेज है, भरतपुर, धौलपुर, करौली एंड अलवर। शोभालाल जी कुमावत बिकम द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैपिटल वाज अलवर, ठीक है। यहाँ पे शोभालाल जी आ गए थे, कैपिटल इसकी अलवर रखी गई। राजस्थान यूनियन सेकंड में आया 25 मार्च 1948 में। बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, कोटा। हेड ऑफ द कोटा श्री गोकुल लाल असावा वॉज अपॉइंटेड द सीएम। तो गोकुल लाल असावा को क्या बनाया गया है यहाँ पे? सीएम गोकुल लाल असावा यहाँ सीएम बने 25 मार्च 1948। पहले में कौन थे? शोभालाल कुमावत, ठीक है, 18 मार्च 1948। फिर आया था यूनाइटेड राजस्थान। यूनाइटेड राजस्थान जो था थर्ड स्टेज को बोलते हैं, ये है 18 अप्रैल। अब वो मार्च से यहाँ अप्रैल डेट सेम है। 1948 यहाँ आए थे, माणिक्य लाल वर्मा को पीएम बनाया गया और यहाँ की कैपिटल रखी गई थी उदयपुर। पहले अलवर रखी गई कैपिटल, फिर सेकंड में हमने क्या कोटा को कैपिटल बना दिया, ठीक है, सेकंड में कोटा बन गई। फिर थर्ड में यूनाइटेड राजस्थान आया, तो यूनाइटेड राजस्थान में हमने उदयपुर को कैपिटल बना दिया। फिर ग्रेटर राजस्थान चौथा स्टेज 30 मार्च, अगेन मार्च आ गया 1949, लेकिन ईयर चेंज हो गया, 49 आ गया, ठीक है। तो ग्रेटर राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। हीरालाल शास्त्री को हमने यहाँ का पीएम बना दिया। उदयपुर के थे भोपाल सिंह, महाराज प्रमुख बन गए यहाँ पे, ठीक है। उदयपुर के भोपाल सिंह को महाराज प्रमुख, हीरालाल को हमने प्राइम मिनिस्टर बना दिया ग्रेटर राजस्थान में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्रेटर राजस्थान आया था 15 मई 1949। मत्स्य संघ को इसमें मर्ज कर दिया गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान में। हीरालाल शास्त्री को फर्स्ट सीएम बनाया गया। लास्ट में आया था यूनाइटेड राजस्थान 6th स्टेज 26 जनवरी 1950 में। 18 स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड राजस्थान एंड प्रिंसली स्टेट में आबू देलवाड़ा। फिर राजस्थान का जो 7th स्टेज में 1 नवंबर 1956 अजमेर, मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा, सुनील टप्पा, बानपुरा, तहसील ऑफ द मंदसौर, इन सबको जोड़ दिया गया, ठीक है। फिर राजस्थान आया था 1 नवंबर 1957 स्टेज में, और मोहनलाल सुखाड़िया को हमने सीएम बनाया और गुरुमुख निहाल सिंह को गवर्नर बनाया। तो पहले गवर्नर कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह। पहले सीएम कौन है? मोहनलाल जी सुखाड़िया जी। The Chief Justice and the other judges of the State High Court appointed by President on consultation with the Chief Justice of India and the Governor of the state. So Chief Justice High Court is appointed by President. Every High Court shall consist of Chief Justice and such judges the President by decide. Judges of the High Court are removed by the President on the same ground manner as the judges of Supreme Court. Chief Justice of High Court is appointed after consultation with Chief Justice of India and the Governor for the appointment of other judges of the High Court and concern also. Additional information: Prime Minister is appointed by the President, Governor of the appointed by President, Chief Justice and other judges also appointed by the President. Oath and affirmation: High Court administered by the Governor. Judges of the High Court can resign his office writing to the President. रिज़ाइन भी किसको करते हैं? प्रेसिडेंट को करते हैं। ओथ कौन दिलाते हैं? गवर्नर दिलाते हैं। अपॉइंटमेंट्स कैसे होंगी? तो कंसल्ट किया जाएगा, कंसल्टेशन के बाद ही होगा, ठीक है।
From which of the following dates the ruler of the High Court of Judicature of the Rajasthan 1952 came into force? 1 October 1952. So the rule of the High Court of Judicature of Rajasthan came into 1 October, and Chapter 3 of said rules refer to the administrative business of the High Court, establishing merger former princely state of Rajasthan. राजस्थान हाई कोर्ट रूल 1952 में आया था एंड ऑफिशियली इनाग्रेशन हुआ था 29 अगस्त 1952 को, लेकिन यहाँ पर 1 अक्टूबर को इन्फोर्स में हुआ था. ऑफिशियली इनाग्रेट तो 29 अगस्त में, बट इसने इन्फोर्स पूछा है. इन्फोर्स 1 अक्टूबर 1952. वो वॉज द प्रोटेम स्पीकर 15 राजस्थान असेंबली, दैट वॉज गुलाब चंद कटारिया जो थे. ठीक है, तो ये 2000 ही वॉज द होम मिनिस्टर इन द राजस्थान 2014 से 18 के बीच में ये होम मिनिस्टर थे. प्रोटेम स्पीकर विल बी कंडक्टिंग फर्स्ट मीटिंग ऑफ द 15 असेंबली. एंड प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं? क्वाइट द ऑफिस इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड असेंबली. सो प्रेसिडेंट और गवर्नर अपॉइंट करते हैं इनको. व्हेन ए हाउस इलेक्ट द न्यू स्पीकर, ऑफिस ऑफ द प्रोटेम स्पीकर डिसकंटिन्यू हो जाएगा. प्रोटेम स्पीकर इज ए शॉर्ट लाइव्ड होता है इसका पीरियड. ठीक है, सो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन वर हेल्ड इन राजस्थान 25 नवंबर टू इलेक्ट 199 मेंबर्स आउट ऑफ 200 मेंबर ऑफ द राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली. भजनलाल शर्मा become the CM of Rajasthan. Now, which is the following former women member of Rajasthan Public Service Commission have also been the member of the Union Public Service Commission? तो कांता कंतूरिया एंड प्रकाशवती शर्मा ये दोनों हैं, बट कमला बील और दिव्या सिंह नहीं है. तो ये बोल रहे हैं कि आल्सो बीन मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. एक तो कांता कंतूरिया थी और प्रकाशवती शर्मा. So this former women member of Rajasthan Public Service and were also member of the UPSC. Rajasthan Public Service Commission is a body with the authority under the Constitution of India to select the applicant for application to civil jobs. RPSC started operation 1949 when Rajasthan came into existence. The commission has 8 members who is supported and advised by the commission. इट इज़ ऑफिस इन द अजमेर. मेंबर कौन है? संजय कुमार सातोरिया, प्रोफेसर अयूब खां, संगीता आर्या, जसवंत सिंह राठी, बाबूलाल कतारिया, मंजू शर्मा. अमंग द जजेस ऑफ राजस्थान who administered oath which is the following period incorrectly? जस्टिस जवान सिंह राणावत कोटा में नहीं है. लाला नवल किशोर जोधपुर, जस्टिस कंवरलाल जयपुर, जस्टिस त्रिलोचन दत्त बीकानेर, बट जस्टिस जवान सिंह राणावत कोटा में, ये इनकरेक्टली इमेज है. नवल किशोर जोधपुर में है, KL बापना जयपुर में है, JS राणावत उदयपुर में है, शार्दुल सिंह उदयपुर में है, और हॉनेबल जस्टिस त्रिलोचन दत्त बीकानेर में है, खेमचंद जी कोटा में है. ठीक है. वो अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन चीफ सेक्रेटरी ऑफ द राजस्थान, तो वी नारायणन हैं, किशन पुरी भी हैं, सनवल्दन उज्जवल भी हैं, बट मेघराज कल्ला नहीं है. ठीक है, चीफ सेक्रेटरी पूछा है ना. चीफ सेक्रेटरी में सबसे पहले आए थे राधा कृष्णन 1950, नारायणन 1950 अगेन, राधा कृष्णन अगेन आए 51 में, फिर शिवेश्वरकर आए थे 53 में, BG राव आए थे 54 में, कृष्णापुरी BG राव आए थे जब मेरी मॉम पैदा हुई थी, तो ये आए थे 54 में. किशनपुरी आए थे 57 में. ठीक है, फिर किशनपुरी के बाद में कौन है? किशनपुरी के बाद में है, सॉरी, जब मेरी मॉम पैदा हुई थी 55 में, तो तब आए थे किशनपुरी. और KN सुब्रमण्यम दैट वाज इन 58, और भगवत सिंह मेहता दैट वाज इन भगवत सिंह मेहता जी आए थे 64 तक, 58 से 64 में. शनवल्दन उज्जवल जो आए थे दैट वाज इन 64 से 65 के बीच में. सॉरी, मेरी मॉम तो 65 में पैदा हुई थी. ओके, ठीक है. किशनपुरी आए थे 54 टू 57. इस समय मेरे डैड पैदा हुए थे 59 में. तो KN सुब्रमण्यम आए थे 59 में, मेरे डैड इस समय पैदा हुए थे 59. भगवत सिंह मेहता, तो भगवत सिंह मेहता
चीफ सेक्रेटरी थे जब मेरे डैड पैदा हुए थे 59 में। ओके, तो सबसे पहले आए थे यहाँ पे बीजी राव 54, किशनपुरी आए थे 57, सुब्रमण्यम जी आए थे 58। ठीक है, ध्यान रखना है। भगवत सिंह मेहता, इस समय मेरे डैड पैदा हुए थे, तो भगवत सिंह मेहता 58 से 64। फिर शनवलदान उज्ज्वल, मेरी मॉम पैदा हुई थी 65 में, तो तब थे सनवलदान उज्ज्वल यहाँ के चीफ सेक्रेटरी राजस्थान के, सनवलदान उज्ज्वल। और भगवत सिंह मेहता अगेन आए, फिर ये दोबारा आए, तो यहाँ मेरी मॉम पैदा हुई थी, सनवलदान उज्ज्वल थे तब यहाँ के चीफ सेक्रेटरी। इससे पहले भगवत सिंह मेहता, अगेन भगवत सिंह मेहता। फिर डीबी गुप्ता आए थे 2018 से 2020। और राजवीर जी स्वरूप आए थे, राजवीर जी स्वरूप 2020, अगेन लोवेस्ट वर्किंग डेज में राजीवा जी स्वरूप थे। श्री कृष्ण निरंजन कुमार, ये 2022। उषा शर्मा एज ए IAS सेकेंड वुमेन चीफ सेक्रेटरी भी रही हैं 2022 से 23। मेरी मॉम का नाम भी उषा ही है, तो ये उषा शर्मा एज ए IAS हैं 2022-23। फिर है सुधांश पंत, तो सुधांश पंत जो थे 2024 में चीफ सेक्रेटरी रहे। Which of the following about State Election Commission is correct? So, the State Election Commission of Rajasthan constituted in 94 under the 243K. तो ये wrong है। State Commission is single member body है, yes. State Commission has a secretary who is also chief electoral office, yes. तो ये कब आया था स्टेट? ये जुलाई में आया था, अप्रैल में नहीं आया था। ठीक है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ राजस्थान 243K के अंदर है, और ये है जुलाई 1994 में। सिंगल मेंबर बॉडी होती है, ठीक है, एंड हैज़ ए सेक्रेटरी वो ऑल्सो नॉन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भी कहलाता है। और इलेक्शन टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में फर्स्ट इलेक्शन हुए थे, कब हुए थे? 1960 में। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ देख लेना। और आगे 11th वाला हुआ था अपना 2020 में। और राजस्थान सीन्स 1960 से लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट बनाया गया है। फर्स्ट इलेक्शन अब कंडक्ट किया गया था जो कि 1963 में, 1963 में फर्स्ट इलेक्शन कंडक्ट किया गया था। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए कैंडिडेट कैन नॉट कंटेस्ट फ्रॉम मोर देन वन वार्ड, नो। ए कैंडिडेट कैन फिल मैक्सिमम 4 नॉमिनेशन पेपर, येस। तो कैन नॉट कंटेस्ट मोर देन वन वर्ड, दैट इज रॉन्ग, वो कंटेस्ट कर सकता है। ठीक है, अंडर विच ऑफ द सेक्शन ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ऑफ द राजस्थान स्टेट इन्फॉर्मेशन ऑर्डर शेल बाइंडिंग ऑन द पब्लिक अथॉरिटी, तो 19 का 7, ठीक है, इसमें बाइंडिंग होता है। तो इन द 19 का 7 इंफॉर्मेशन कमीशन के जितने भी डिसीजन है शेल बाइंडिंग द इफ द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन अपील इज प्रिफर्ड रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन ऑफ द थर्ड पार्टी, जो भी है। नाउ हु इज द फॉलोइंग इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफिस, तो ये हैं अरविंद मायाराम। तो इकोनॉमिकल 1978 बैच के हैं अरविंद मायाराम। वॉज अपॉइंटेड बाय द प्रिंसिपल इकोनॉमिकल एडवाइज़र भी कहते हैं। पहले चीफ सेक्रेटरी बता देते हैं, पहले अशोक जैन है 2017, फिर NC गोयल 2018, BD गुप्ता 2020। ठीक है, तो अशोक जैन कब आए थे? 2017 में, जब मैं दिल्ली में थी, UPSC की प्रिपरेशन कर रही थी। तो उस समय जो लिस्ट में बता रहे हैं कि अशोक जैन थे। ठीक है, उसके बाद 2018 में भी मैं दिल्ली में ही हूँ, उस समय NC गोयल, लोवेस्ट वर्किंग डेज में रहे अशोक जैन, NC गोयल। फिर BD गुप्ता, ये DB गुप्ता के समय 2020 का टाइम है ये। और राजीवा स्वरूप जो थे 2020 में ही हैं। फिर श्री निरंजन कुमार चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान फर्स्ट है। इस समय मैं गोल्ड मेडलिस्ट बनी थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, उस समय थे निरंजन कुमार आर्या। उषा शर्मा भी वही उसी समय ही है, निरंजन और उषा शर्मा। इस समय मैं गोल्ड मेडलिस्ट बनी थी MDS यूनिवर्सिटी से, उस समय निरंजन कुमार और उषा शर्मा थी। फिर है सुधांश पंत 2024 में है। ठीक है, ये consider the following statement, SSO ID is required to get information from Jan Suchna portal, no. There is no fee for getting information of E-Mitra through Jan Suchna, yes. So Jan Suchna portal will be providing, तो SSO ID required होती है क्या? नहीं required होती है। ठीक है, so Jan Suchna portal attempt to provide the information through the public order under the section 4(2) of the Right to Information Act,
and it is not, SSO ID is not required. There is no fees for getting the information of e-Mitra. ठीक है. नो अबाउट योर राशन कार्ड, राशन शॉप, अपूर्वा NFSA बेनिफिशियरी, नो अबाउट राशन कार्ड होल्डर्स. ठीक. विच इज़ द फॉलोइंग इनकरेक्टली लिस्टेड गुड गवर्नेंस बाय राजस्थान संपर्क. तो ट्रस्ट नहीं है, ट्रांसपेरेंसी, ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड रोबस्ट डिलीवरी है, बट ट्रस्ट इज नॉट देयर. नेक्स्ट है the jurisdiction of Rajasthan human right including civil and political right, economical and social and cultural right. नेक्स्ट है राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट में 18 जनवरी 1999 में इसको लाया गया था नोटिफिकेशन को. स्टेट कमिश्नर अंडर द प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, दैट वाज इन 1993. ह्यूमन राइट कमीशन बिकम ऑपरेशनल 2002, मार्च 2000 से. जस्टिस कांता कुमार भटनागर वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ दिस. जो ह्यूमन राइट कमीशन की फर्स्ट चेयरपर्सन कौन है? कांता कुमार भटनागर है. कब से स्टार्ट हुआ है? मार्च 2000 से स्टार्ट हुआ है. चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन श्री RK अकोडिया एंड BL जोशी एंड प्रोफेसर अलाम शाहरुख खान वॉज अपॉइंटेड एज ए मेंबर. राजस्थान स्टेट गवर्नर ने नोटिफिकेशन कब निकाला था ह्यूमन राइट का? 18 जनवरी 1999 को. फॉर द कंस्टिट्यूशन ऑफ स्टेट कमिश्नर अंडर प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट 1993. तो राजस्थान में कब आया था नोटिफिकेशन? 99 में. फिर मार्च 2000 में कांता कुमार भटनागर इसकी बन गई थी. ठीक है. और इसका ह्यूमन राइट कमीशन का वर्क क्या होता है? प्रोटेक्ट करना ह्यूमन राइट्स को. ठीक है. इसके बाद है द परसेंटेज ऑफ मार्जिनल वर्कर टू टोटल वर्कर एज पर सेंसस इन इंडिया एंड द राजस्थान रिस्पेक्टिवली इज 29% एंड 37%. The percentage of marginal worker to total worker as per census in India and Rajasthan respectively is 29% and 33%. The percentage of marginal worker to total worker as per in India 29 and 33%. So that was 29 and 33%. तो सेंसस एक्ट आया था 1948 को. दिस एक्ट वॉज पायलटेड बाय द सरदार वल्लभ भाई पटेल. द पॉपुलेशन ऑफ द सेंसस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट वॉज अंडर 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. तो इंडियन पॉपुलेशन सेंसस इज 246 इन लिस्टेड 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में. सेंसस को सबसे पहले लाया गया था 1948 में. ठीक है. और ये कौन सा आर्टिकल है? पॉपुलेशन सेंसस अंडर द सब्जेक्ट अंडर आर्टिकल 246 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसमें टोटल कितने बताए गए हैं? 29% और 33% जो वर्कर्स हैं एज पर द सेंसस, ये मार्जिनल वर्कर है. ठीक है. सो दिस